Today's video lecture we will discuss about liquid dosage form, that is heterogeneous liquid dosage form emulsions. Emulsion dosage form in detail. It is you can say part 3 of liquid dosage form, or you can say it is one of the example of heterogeneous liquid dosage form. So let's remind about the classification of liquid dosage forms. Liquid dosage form basically दो important classes में divided है. One is monophasic liquid dosage form and the other is biphasic liquid dosage form. Monophasic liquid dosage form में पूरा का पूरा system single phase में ही है. सिंगल फेज इज मेनली मॉलिकुलर फेज. यहाँ पे आपको दो अलग अलग फेजेस नहीं मिलेंगे. इसका एग्जांपल आपको बताया मैंने, सिरप, एलिक्सर, लेंटिसेस, गागल्स, माउथ वॉशेस एंड ऑल. इस पूरे मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म को हम लिक्विड डोजेस फॉर्म के पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं. Now in this part I'll discuss about the biphasic liquid dosage form, and out of which it is emulsion. Biphasic liquid dosage form further दो classes में divided है. One is suspension and the other one is emulsion. We'll discuss about emulsion in this slide. Biphasic liquid dosage form classified into two main types. One is emulsion, the other one is suspension. It's talking about the definition of emulsions. Emulsions, especially emulsion dosage forms, they are thermodynamically unstable. They are thermodynamically unstable and they consist of two immiscible liquid phases. They have two immiscible liquid phases. One liquid phase is dispersed as fine globules, minute globules within the other liquid phase. And this dispersion, liquid within the liquid, this dispersion is stabilized with the help of emulsifying agents. I am explaining you again. Emulsions are thermodynamically unstable, biphasic, obviously it's written here, biphasic liquid or semi-solid dosage form. Emulsion thermodynamically unstable biphasic liquid या semi solid dosage form है. और होता क्या है इसमें, दो immiscible liquids, जब आप इसमें दो liquids miscible नहीं है, like oil और water का ही आप example ले लो, इन दोनों को अगर साथ में लेके कोई dosage form बनाना है, they are not miscible, then emulsion dosage form are the only option. इसमें एक phase को, एक लिक्विड फेज को जो सॉल्युबल नहीं है, मिसिबल नहीं है दूसरे फेज में हम फाइन ग्लोब्यूल के फॉर्म में डिस्पर्स कर देते हैं. और इस डिस्पर्सन को स्टेबलाइज करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज इमल्सिफाइंग एजेंट्स. ये इमल्शंस भी दो टाइप के हैं. Although I had explained all the classes of emulsion in further slide, but basically जो दो टाइप के emulsion है वो है W by O, it is water in oil type emulsion, and O by W, it is oil in water type emulsion. तो water इन ऑयल टाइप इमल्शन में वाटर जो है वो डिस्पोज्ड फेज है, और इन ऑयल मतलब ऑयल कॉन्टिन्यूअस फेज में वो डिस्पोज्ड है. एंड जस्ट वाइस वर्सा, इट्स ऑयल इन वाटर. ऑयल प्रेजेंट है इन वाटर, मतलब वाटर के अंदर ऑयल के फाइन ग्लोब्यूल्स वाटर के अंदर अगर डिस्पोज्ड हैं, और ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज इमल्सिफाइंग एजेंट्स फॉर देयर स्टेबिलिटी, दे आर oil and water type of emulsions. Talking about just the definition of suspension dosage form in contrast to emulsions, यहाँ पर हम ऐसे solid को disperse करते हैं जो liquid में soluble नहीं है. अगर soluble है तो homogeneous dispersion बनेगा, लेकिन अगर soluble नहीं है तो homogeneous dispersion नहीं बनता है. We make suspension. It is a biphasic liquid or semi-solid dosage form in which insoluble solid particles of the drug are homogeneously dispersed. They are homogeneously continuously dispersed. Dispersion है, या यहाँ पे आप कहते हो suspended. The solid particles are suspended in liquid or semi-solid medium. The examples are gel, lotions, aerosol, inhalations, and eye drop for suspension dosage form. Now its definition of emulsion, as I am explaining emulsion dosage form in detail by this lecture, video lecture. Emulsions are heterogeneous. What is the meaning of heterogeneous? Heterogeneous का मतलब है एक से ज्यादा phases हैं इसमें. Biphasic, अब heterogeneous है तो कितने phases हैं? सिर्फ दो phase, दो अलग अलग phases हैं emulsion में, and they are thermodynamically unstable. Why they are called thermodynamically unstable? Because
इमल्शन और सस्पेंशन दोनों ही थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। रीजन क्या है, जब हम पार्टिकल की साइज को या इमल्शन में ग्लोब्यूल की साइज को रिड्यूस करते हैं तो सरफेस एरिया ट्रिमेंडसली बढ़ जाता है। इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, वो भी बहुत ज्यादा सरफेस एरिया ट्रिमेंडस फॉर्म में इंक्रीज हुआ, और वी आर गोइंग टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर दिस डिविजन। हम इस फाइन पार्टिकल में या ग्लोब्यूल में डिवाइड करने के लिए इमल्शन बनाते वक्त, ग्लोब्यूल अगर फाइन बना रहे हैं तो भी, सस्पेंशन बनाते वक्त अगर फाइन पार्टिकल है तो भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सो दैट वो फाइन पार्टिकल में या फाइन ग्लोब्यूल में कन्वर्ट हो जाए। बिना एनर्जी के ये कन्वर्ट नहीं होंगे, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल डोजेस फॉर्म। ठीक है। एंड वी ऑल्सो नो गिव्स फ्री एनर्जी, अगर जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ही ज्यादा उनके ऊपर सरफेस पर गिव्स फ्री एनर्जी है, फ्री एनर्जी, सरफेस फ्री एनर्जी भी इसको करते हैं। एंड हायर एनर्जी विल लीड टू अनस्टेबिलिटी। The substance which is at higher energy state are relatively much more unstable as compared to the substance having lower energy state. Higher energy state वाले substances हमेशा unstable होते हैं। दैट्स वाई इमल्शन एज वेल एज सस्पेंशन या कोई और डोजेस फॉर्म जिसमें हम पार्टिकल साइज को रिड्यूस कर रहे हैं वाई प्रोवाइडिंग एनर्जी, और ऑब्वियसली एनर्जी देना ही पड़ेगा टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज और ड्रॉपलेट साइज और ग्लोब्यूल साइज, दे ऑल आर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। इसी अनस्टेबिलिटी को कम करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज स्टेबलाइजिंग एजेंट्स। सस्पेंशन में सस्पेंडिंग एजेंट अलोंग विद अदर स्टेबलाइजिंग एजेंट्स, और इमल्शन में इमल्सिफाइंग एजेंट्स अलोंग विद अदर स्टेबलाइजिंग एजेंट्स यूज होता है। Coming back to the definition of emulsion, emulsions are heterogeneous, biphasic, thermodynamically unstable dosage form in which fine dispersion of minute droplets of one liquid is continuously dispersed in another liquid with the help of emulsifying agents. Dispersed phase is also known as internal phase, and dispersion medium is also known as external phase. Dispersed phase को हम internal phase भी कहते हैं, और डिस्पर्सन मीडियम को एक्सटर्नल फेज या कॉन्टिन्यूअस फेज भी कहते हैं। नाउ टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन सिस्टम। एज आई टोल्ड यू, प्राइमरी इमल्शन दो टाइप के हैं, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। एंड ऑयल इन वाटर की बात करें तो ऑयल आपका इंटरनल फेज है और वाटर एक्सटर्नल या कॉन्टिन्यूअस फेज है। ऑयल को, इंटरनल फेज को हम डिस्पर्स्ड फेज भी बोलते हैं, और वाटर जो कॉन्टिन्यूअस एक्सटर्नल फेज है उसको डिस्पर्सन मीडियम भी बोल रहे हैं। तो ऑयल इन वाटर में ऑयल आपका इंटरनल और वाटर आपका एक्सटर्नल हो गया। एंड जस्ट रिवर्स केस इज वाटर इन ऑयल। वाटर जब इंटरनल है, ऑयल में वो डिस्पर्स्ड है, तो वाटर इंटरनल फेज और ऑयल आपका एक्सटर्नल फेज होगा। ये प्राइमरी इमल्शन की क्लासिफिकेशन है। बेसिकली हम लोग इस लेवल पे, बी फार्म लेवल पे, यही इमल्शन पढ़ते हैं, प्राइमरी इमल्शन, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल। इसी के बारे में आगे आपके लेक्चर्स में, वेरियस लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर्स में हम डिटेल में बताएंगे। बट जस्ट अबाउट द नॉलेज ऑफ अदर क्लासेस ऑफ इमल्शंस, सेकेंड इज मल्टीपल इमल्शन। मल्टीपल इमल्शन दो क्लासेस में डिवाइडेड है, ऑयल इन वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन, और वाटर इन ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। होता क्या है, लाइक ऑयल इन वाटर इन ऑयल, इसमें आप ऑयल इन वाटर इमल्शन को फिर से इमल्सिफाई कर दो। एक बार तो प्राइमरी इमल्शन बनाया ऑयल इन वाटर, इसको हम फिर से अगर इमल्सिफाई करते हैं किसी ऑयली फेज में, तो ये मल्टीपल इमल्शन विद इन एन इमल्शन, इमल्शन के अंदर एक और इमल्शन। इस वे में ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्शन, या अगर हम वाटर इन ऑयल को लेकर के चलेंगे, ऑयल कॉन्टिन्यूअस फेज है तो ये वापस डिस्पर्स होगा वाटर में, तो वाटर इन ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ मल्टीपल इमल्शन। They both are emulsion within emulsion. The next is micro emulsion. अगर ग्लोब्यूल की साइज माइक्रोन साइज की है, अगर हमारा इमल्शन का जो डिस्पर्स्ड फेज का ग्लोब्यूल है वो माइक्रोन साइज रेंज का है, बहुत ही छोटा है, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो इमल्शन। यहाँ पर क्या होता है, जो प्राइमरी इमल्शन है, इवन मल्टीपल इमल्शन है, इसमें इमल्शन का कलर व्हाइट है। ठीक है, प्राइमरी इमल्शन में इमल्शन का जो कलर है वो व्हाइट है, एंड द रीजन इज टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। और माइक्रो इमल्शन ट्रांसपेरेंट होता है। माइक्रो इमल्शन व्हाइट कलर का नहीं होता है, इट इज ट्रांसपेरेंट। क्यों? क्योंकि जो ग्लोब्यूल की साइज है वो कहीं ना कहीं विजिबल रेंज की वेवलेंथ में नहीं आती है। विजिबल रेंज 280 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर की रेंज है, और उस रेंज में अगर आपका नहीं आएगा साइज तो ट्रांसपेरेंट, क्योंकि आपका जो भी फिनोमेना, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब इस रेंज में नहीं पड़ता। एंड हाँ, बाकी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से इमल्शन जो है वो व्हाइट कलर का है। थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन, क्या है इमल्सिफिकेशन, कैसे इमल्शन बनता है?
फर्स्ट इज इमल्सिफिकेशन इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ऐसा कुछ नहीं है कि अचानक से इमल्सिफिकेशन प्रोसीड होगा. देयरफॉर इमल्शंस हैव मिनिमम स्टेबिलिटी. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल प्रिपरेशन है, इनकी स्टेबिलिटी कम होती है, ये कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है. इमल्शन में पोलर और नॉन पोलर दोनों ही लिक्विड्स प्रेजेंट हैं, and we are going to mix or emulsify those liquids to form emulsion. Emulsification process में एक लिक्विड डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल के फॉर्म में दूसरे कॉन्टिन्यूअस फेज में होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है. When this emulsion left aside, it finally separates into two layers. हम उसको बनाने के बाद अगर रख दें एक कुछ घंटों के लिए, कुछ टाइम के लिए रख दें, तो दो डिस्टिंक्ट लेयर्स में आपको ऑयली फेस या नॉन पोलर फेस और एक्वस फेस दैट इज पोलर फेस दिखेगा, क्योंकि उनमें जो फोर्स ऑफ एडिशन है वो वीक है. हाँ, वी कैन शेक देम. अच्छे से शेक करने के बाद वापस वो रीडिस्पोज हो जाते हैं. Emulsifying agents tend to concentrate at the interface and form a tough film around the globule. जो main emulsification process है, I'll show you by the diagram which is present in the next slide. मेन emulsification process में emulsifying agents का रोल है. emulsifying agents का काम क्या है? ये surface that is interface. कौन सा interface? पोलर और नॉन पोलर जो आपके दो लिक्विड्स हैं उनके बीच के इंटरफेस पे काम करता है. सरफेस टेंशन को मेनली ये रिड्यूस कर रहा है, एंड जो आपके दोनों लिक्विड्स हैं, पोलर और नॉन पोलर दो लिक्विड्स हैं, या एक्वस और ऑयली दो लिक्विड्स हैं, उनको इमल्सिफाई करने का काम करता है. So here, this is the process of emulsification. You can see here कि कैसे emulsion आपका बन रहा है. ये है येलो कलर का जो आपको दिखता है एग यॉक. येलो कलर में जो यहाँ पे दिख रहा है आपको विजिबल है, दिस इज एग यॉक. ये एक इमल्सिफाइंग एजेंट है. एग यॉक जो है वो इमल्सिफाइंग एजेंट है. एक मिक्सिंग बाउल में अगर आप एग यॉक को रखते हो और उसको प्रॉपर शेयर प्रोवाइड करवा रहे हो, व्हाट विल हैपन, हमने इसमें एक्वस और नॉन एक्वस दोनों मिक्सचर्स भी रखा है. होता क्या है, जब हम इसको शेयर करते हैं, फैटी ड्रॉपलेट धीरे धीरे शेयरिंग के साथ ऐड करेंगे. ऐसे एग यॉक है वो एक इमल्सिफाइंग एजेंट है. इसको आप लेसिथिन भी बोलते हो. लेसिथिन इमल्सिफाइंग एजेंट है. इसके साथ अगर हम फैट को डालते हैं तो छोटे छोटे ड्रॉप्स में वो कन्वर्ट हो जाता है. इस एग यॉक के साथ मिक्स करते रहेंगे, कॉन्टिन्यूअस फेज है. एसिड भी हमने डाला हुआ है इसमें. ये आपका फैट जैसे ही डालेंगे, फैट छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इसमें डिस्पोज हो जाएगा. जितनी अच्छी शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग का मतलब है जितनी अच्छी मिक्सिंग कर रहे हैं, शेयर पावर लगा रहे हैं, शेयरिंग स्ट्रेस लगा रहे हैं, उतने ही छोटे छोटे ड्रॉप्स के फॉर्म में आपका फैटी ग्लोब्यूल कन्वर्ट होगा. छोटे छोटे ड्रॉपलेट के फॉर्म में फैटी ग्लोब्यूल कन्वर्ट हो जाता है. तो प्रोसेस क्या है इमल्सिफिकेशन का? इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस में हमने सबसे पहले तो लिया इमल्सिफाइंग एजेंट, और उसके साथ हम ले रहे हैं एक्वस और ऑयली फेजेस. कौन सा पहले लेंगे ये डिपेंड करता है किस मेथड से हम इमल्शन को प्रिपेयर कर रहे हैं. इसको मिक्स करना है, शेयर स्ट्रेस लगाना है. शेयर स्ट्रेस लगाने के बाद जो फैटी प्रिपरेशन है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगा. जितना स्ट्रेस लगाएंगे उतने ही फाइन ड्रॉपलेट में ये कन्वर्ट होता चला जाएगा, उतना ही फाइन ड्रॉप्स आपका बनता चला जाएगा. मोर शेयरिंग स्ट्रेस विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म इमल्शन. जितना ही जब आपका फैट इमल्सिफाई हो जाता है, विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, एंड द कलर ऑफ होल मिक्सचर, कलर ऑफ होल इमल्शन बिकम्स व्हाइट. जैसे आप बना रहे हो, प्रैक्टिकली लैब में बनाते हो, तो यू विल सी कि जो भी प्रिपरेशन है आपकी वो वाइट और एक थिक विस्कस प्रिपरेशन के फॉर्म में विद अ क्लिकिंग साउंड इट विल अपीयर. दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ emulsification process. Now there are three theories for emulsification. The first theory is monomolecular adsorption and film formation theory, as it is clear by the diagrams also. You can see like here this circle which is present is representation of polar head, and this long chain जो आपको ये दिख रहा है ना, एक long thread like structure, this is representation of a long chain fatty acid. तो polar head and उसके सामने जो ये थ्रेड जैसे निकल रहे हैं, दो बोथ द डायग्राम्स, यहाँ भी इनर साइड में है और यहाँ पे थ्रेड आपका फैटी
एसिड चेन वो आउटर साइड में है। दोनों ही आपका फैटी एसिड का रिप्रेजेंटेशन एंड द सर्कुलर ग्लोब्यूल या सर्कुलर स्फेरिकल ब्लू शेप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलर हेड। तो सरफेस मोनोमोलिकुलर फिल्म थ्योरी में क्या होता है कि सरफेस पर वाटर इन ऑयल इंटरफेस हो, मतलब वाटर इन ऑयल इमल्शन का इंटरफेस हो या ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन का इंटरफेस हो। अगर पोलर ग्रुप एक साथ है और इनवर्ड डायरेक्शन में है तो ग्लोब्यूल किसका बनेगा, एक्वस फेस का बनेगा, अंदर एक्वस फेस एंट्रैप होगा। और ये ऑयली फेस में, क्योंकि बाहर की तरफ आप देख रहे हो कि फैटी चेन है, तो ऑयली फेस में ये पूरा का पूरा डिस्पर्स होगा। अंदर क्या है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल होंगे वाटर के, तो ये बनेगा वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। उसी का उल्टा कर लेते हैं, अगर इनर साइड में आपके फैटी चेन्स आ रहे हैं तो इनर साइड का जो फैटी चेन है वो अंदर ऑयल के ग्लोब्यूल को इंट्रैप करेगा, बाहर की तरफ आपका एक्वस फेज है, तो जो कॉन्टिन्यूअस फेज है वो एक्वस होगा। तो मोनोमोलिकुलर फिल्म क्या कह रही है कि सर्फेक्टेंट एड्सॉर्ब एट ऑयल वाटर इंटरफेस एंड फॉर्म अ मोनोमोलिकुलर फिल्म। मोनो मतलब सिंगल, मॉलिक्यूलर मतलब सिंगल मॉलिक्यूल। मोनोमोलिकुलर फिल्म यहाँ पे बनेगी, और कौन सी फिल्म बनेगी ये डिपेंड करता है कि आपका ऑयल इन वाटर इमल्शन है या वाटर इन ऑयल इमल्शन है, एंड सेकेंडली डिपेंड करता है कि कौन सा इमल्सीफाइंग एजेंट ऐड किया है आपने। ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सीफाइंग एजेंट ऐड किया है तो ऑयल आपका कंटिन्यू, ऑयल आपका डिस्पोज्ड फेज बनेगा, वाटर आपका कंटिन्यूअस फेज बनेगा, जो डायग्राम ए से रिप्रेजेंटेटेड है। और अगर हम वाटर इन ऑयल लेंगे तो वाटर के ग्लोब्यूल होंगे ऑयली फेज में, तो ऑब्वियसली ये डायग्राम बी से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। और इस टाइप का आपका मोनोमोलिकुलर फिल्म, मतलब एक सिंगल लेयर चारों तरफ, ग्लोब्यूल के चारों तरफ सरफेस एक्टिव एजेंट की एक पूरी की पूरी लेयर बन जाएगी। अगर ऑयल इन वाटर है तो आपका ऑयल इन वाटर का मतलब है कि वाटर कॉन्टिन्यूअस फेज है, तो ए टाइप लगा, पोलर हेड बाहर की तरफ होगा। और वाटर इन ऑयल है मतलब कि आपका जो टेल है, फैटी एसिड टेल है, वो बाहर की तरफ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फेज में वो जाकर के डिस्पर्स होगा या मिसिबलाइज होगा। The second theory is multimolecular adsorption. It's like अगर आप एकेशिया, जेलेटिन इस तरह के पॉलीमर्स को लेते हो तो इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग सिंगल लेयर, वो एक लेयर बनाने के बदले मल्टी मॉलिकुलर लेयर बना लेते हैं, मल्टी मॉलिकुलर फिल्म बना लेते हैं अराउंड दी ग्लोब्यूल्स। और ये जो एक से ज्यादा लेयर्स होती हैं वो कोलेसेंस को, फर्दर कोलेसेंस को प्रिवेंट करता है, आपका इमल्शन वापस कोलाइड नहीं करेगा, कोलेसेंस फिनोमिना जल्दी नहीं होगी। मल्टी मॉलिकुलर फिल्म बनने से जो ग्लोब्यूल है वो कहीं ना कहीं रिजिड होता है और स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है उसमें, एंड रीडिस्पोज भी आपका ईजिली हो जाएगा। ऑब्वियसली दीज फिल्म्स जो आपकी सरफेस एक्टिव एजेंट की फिल्म बन रही है अराउंड द ग्लोब्यूल, दे हेल्प टू रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन। And the third theory says solid particle adsorption theory. अगर finally divided solid है कोई, like आपका केओलिन है या कोई और finally कोलोइडल सिलिका है आपका, वो finally divided solid अगर ग्लोब्यूल के चारों तरफ एड्सॉर्ब हो जाए, सॉलिड पार्टिकल ही क्लोजली एड्सॉर्ब हो जाए, इसको बोलते हैं सॉलिड पार्टिकल एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्ब कहाँ पे होगा, इंटरफेस पे होगा। किसके इंटरफेस पे होगा, ऑयल वाटर इंटरफेस पर जाकर के एड्सॉर्ब होगा। और दिस फिल्म एक्ट एज अ मैकेनिकल बैरियर, एक बार जब सॉलिड पार्टिकल्स एड्सॉर्ब हो जाते हैं तो ये प्रिवेंट करते हैं कोलेसेंस ऑफ ग्लोब्यूल को। एक ग्लोब्यूल दूसरे ग्लोब्यूल के साथ जल्दी कोलेसेंस नहीं करेगा। छोटे छोटे ग्लोब्यूल आपके बन गए इमल्सिफिकेशन प्रोसेस से, आफ्टर द शेयरिंग, जब हमने इमल्जेंट को या इमल्सिफाइंग एजेंट को फेजेस, दोनों ही फेजेस के साथ अच्छे से शेयर किया, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोसेस, वो वेट गम है, ड्राई गम है या कोई और प्रोसेस है, तो उसके जो इंटरफेस बनेगा, जैसे हम शेयर करेंगे पोलर और नॉन पोलर फेजेस को विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, तो इमल्सिफाइंग एजेंट अगर सॉलिड पार्टिकल है तो वो इंटरफेस पे छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल है, फाइन पार्टिकल है, कोलोइडल सिलिका इसका एक एग्जांपल है, वो इस ग्लोब्यूल के चारों तरफ एड्सॉर्ब हो जाएगा और फिल्म को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, एक मैकेनिकल बैरियर की तरह एक्ट करता है। और जब मैकेनिकली एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड इंटरफेस बन जाएगा आपका, तो वो एक दूसरे से कोलेसेंस प्रोवाइडेड, कोलेसेंस नहीं होगा, आपका जो ग्लोब्यूल है वो स्टेबल रहेगा। फॉर्मेशन ऑफ कोर्स इमल्शन इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ दिस टेक्निक। जो कोर्स इमल्शन बनते हैं वो इस पर्टिकुलर प्रोसेस से बन जाते हैं। Here you can see मोनोमोलिकुलर फिल्म, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये है आपका इंटरफेस। इंटरफेस पर एक तरफ आपका
चेन, फैटी चेन चला गया। फैटी चेन किस तरफ जाएगा? ऑयली की तरफ, ऑयली फेस की तरफ या नॉन पोलर फेस की तरफ जाएगा। और इसी इंटरफेस के बाहर की तरफ, दूसरी तरफ आपका पोलर हेड चला गया है। पोलर हेड ऑब्वियसली वाटर में मिसेबल है, तो ये वाटर की तरफ, एक्वस फेस की तरफ या पोलर फेस की तरफ इसका ओरिएंटेशन होगा। मल्टीमोलिकुलर फिल्म में भी कुछ नहीं है, बस इसी के ऊपर, ये जो आपका पोलर हेड है, इसके ऊपर कुछ और आपके सरफेस एक्टिव एजेंट्स आ जाते हैं। तो एक से एक मोनोमोलिकुलर फिल्म में एक ही फिल्म थी, एक ही लेयर थी, इसमें एक से ज्यादा लेयर्स होगी। और ये आपका मल्टी मॉलिकुलर फिल्म रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। और सॉलिड पार्टिकल, जैसे यही इंटरफेस है, इस पर आकर के फाइन सॉलिड पार्टिकल अगर चिपकने लगे, फाइन सॉलिड पार्टिकल एडहेयर कर जाएं, इसको आप बोलते हो सॉलिड पार्टिकल एड्सॉर्प्शन थ्योरी। तो जो तीन थ्योरी एमल्सिफिकेशन की, वो आपके सामने है। मोनोमोलिकुलर फिल्म थ्योरी, multimolecular film theory, or solid particle adsorption theory. And the main process is in the main process you are going to use emulsifying agent. इन दोनों में ही हमने ऐसा emulsifying agent यूज किया है जो एम्पीफेलिक नेचर का, जिसमें पोलर हेड भी है और नॉन पोलर टेल भी है। और हियर इन थर्ड केस सॉलिड एब्जॉर्प्शन थ्योरी में हमने फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स को यूज किया है। In this video lecture, we'll study about various methods for preparation of emulsion. And there are mainly three methods, mainly three laboratory purpose methods. The first one is wet gum method, second is dry gum method, and third one is bottle method. We will discuss all the methods in detail here. The first is wet gum method. Now, this is a flow chart for explanation of wet gum method. Wet gum method is also known as English method. Okay, then what is wet gum method? As name says, wet. Wet का मतलब है obviously water से wet करना, water से गीला करना, wet करना. And gum, the word gum is always the representative of emulsifying agents. तो emulsifying agent को अगर हम सबसे पहले water के साथ mix करते हैं या wet करते हैं, the method is wet gum method. So here are the steps. Step 1. Triturate gum with water in a mortar to form a mucilage. गम लेना है, गम मीन्स emulsifying agent, उसको वाटर के साथ ट्राइचुरेट करो, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, जो मिनिमम सफिशिएंट क्वांटिटी है वाटर की, उसके साथ हम मोटर में विद द हेल्प ऑफ पेस्टल ट्राइचुरेट करते हैं। तब तक ट्राइचुरेट करते हैं जब तक कि म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस, म्यूसिलेजिनस कंसिस्टेंसी हमको ना मिल जाए, जब तक कि म्यूसिलेज फॉर्म ना हो जाए। वाटर सॉल्युबल, वाटर पोलर है आपका गम, तो वाटर के साथ वो कहीं ना कहीं म्यूसिलेज फॉर्म करेगा। एंड वी आर गोइंग टू ट्राइचुरेट बोथ गम एंड वाटर टू फॉर्म म्यूसिलेज। दिस इज द स्टेप 1 ऑफ इंग्लिश मेथड और वेट गम मेथड। एक बार म्यूसिलेज बन जाता है तो इसमें सेकेंड स्टेप पर ऑयल ऐड करना है, और ऑयल को स्लोली ड्रॉप बाई ड्रॉप ऐड करना है विद कंटिन्यूअस ट्राइचुरेशन। ऑयल को जब हम ऐड करेंगे, ड्रॉप बाई ड्रॉप ऐड करेंगे और कंटिन्यूअस मिक्सिंग या ट्राइचुरेशन के साथ ऐड करेंगे। आफ्टर एडिंग ऑल दी ऑयल, जब धीरे 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 हम ऑयल ऐड कर रहे हैं, थर्ड स्टेप पे पूरा का पूरा ऑयल ऐड हो जाए, तो हम इसको थोरोली मिक्स करते हैं फॉर द फ्यू मिनट्स टू फॉर्म प्राइमरी इमल्शन। प्राइमरी इमल्शन बन गया, ये कैसे पता चलेगा? फर्स्ट, कलर आपको व्हाइट मिलेगा। दूसरा, क्लिकिंग साउंड विल कम व्हेन प्राइमरी इमल्शन इज फॉर्म। प्राइमरी इमल्शन बनने के बाद हम जो वॉल्यूम होना चाहिए वो कंटिन्यूअस फेज से मेंटेन करते हैं। दिस इज द लास्ट स्टेप। पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है इमल्शन का, प्राइमरी इमल्शन का, उसको मेकअप करना है विद कंटिन्यूअस फेज। इस वॉल्यूम को मेकअप करते वक्त हम वॉश भी करते हैं, मोटर पेस्टल को प्रॉपर्ली वॉश करते हुए जो वॉशिंग से वो भी डालना है। एंड ऑब्वियसली अगर लैब में आप करोगे तो मेजरिंग सिलेंडर ही हम यूज करते हैं टू मेकअप, टू फाइंड आउट द फाइनल वॉल्यूम। तो उसमें वॉश करते हुए मेजरिंग सिलेंडर में हमने फाइनल वॉल्यूम को मेकअप कर लिया। दिस इज वेट गम मेथड। सारे स्टेप्स को हम एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। पहले स्टेप में हमने गम और वाटर लिया, ट्रैचुरेट किया, म्यूसिलेज बनाया। सेकेंड स्टेप पे ऑयल लेना है, लेकिन एकदम से नहीं डालना। गम और वाटर को तो एक साथ लेना है, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर विद ऑल क्वांटिटी ऑफ गम, और ऑयल को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है विद कंटिन्यूअस ट्राइचुरेशन। ऑयल को ऐड करते जाओ, ट्राइचुरेट करते जाओ, सारा का सारा ऑयल ऐड हो जाएगा। तो फाइनली आप आगे भी उसको ट्राइचुरेट करते रहेंगे जब तक कि प्राइमरी इमल्शन ना बन जाए। एक बार आपको प्राइमरी इमल्शन बन गया, ऐसा विजुअलाइज कर लिया आपने, कंफर्म कर लिया कि प्राइमरी इमल्शन बन गया है, देन मेकअप दी वॉल्यूम। वॉल्यूम को मेकअप करना है, जितनी भी वॉशिंग्स हैं, ताकि कोई भी वेस्टेज ना हो, उसको ऐड करते हुए हमने फाइनल वॉल्यूम ऑफ इमल्शन प्रिपेयर कर लिया। दिस वाज ऑल अबाउट द वेट गम मेथड।
नाउ ड्राई गम मेथड। ड्राई गम मेथड में हमने ड्राई मतलब कि वाटर नहीं यूज करना है, तो वो ड्राई से इसकी वाटर लास्ट स्टेप में जाएगा। ऑयल और गम मिक्स होता है, तो फर्स्ट स्टेप पे हमने इमल्जेंट या गम या एमल्सिफाइंग एजेंट को मोटर में लिया, फिर हमने ऑयल लिया, पहले में क्या लिया था, वाटर, यहाँ पे हम ऑयल ले रहे हैं। दोनों को प्रॉपर मिक्स करेंगे और ट्राचुरेट करेंगे जब तक कि म्यूसिलेज ना बन जाए। एक बार म्यूसिलेज बन जाता है तो ऐड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप विद कंटिन्यूअस ट्राचुरेशन टू फॉर्म प्राइमरी इमल्शन। वाटर को हम ऐड करते जाएंगे जब तक कि प्राइमरी इमल्शन ना बने। प्राइमरी इमल्शन के बनने के बाद मेकअप द फाइनल वॉल्यूम विद कंटिन्यूअस फेज। अगेन द सेम प्रोसीजर इज रिपीटेड, जैसे आपने फाइनल वॉल्यूम बनाना है, और वॉशिंग्स वगैरह जो जिस भी मोटर को पेस्टल को यूज करके हम बना रहे हैं वो सारा वॉशिंग भी डाल देंगे टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ एनी मेडिकामेंट। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? वेट गम मेथड में पहले स्टेप पे हमने गम और वाटर लिया है, और ड्राई गम मेथड में पहले स्टेप पे हमने ऑयल और गम लिया है। वाटर लास्ट में डाल रहे हैं और वेट गम में वाटर फर्स्ट में डाल रहे हैं। दिस वाज द डिफरेंस। The third method for preparation of emulsions are bottle method or Fobbe's bottle method. बॉटल मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमारा ऑयल वोलेटाइल ऑयल हो। वोलेटाइल ऑयल क्यों? क्योंकि अगर हम ओपन कंटेनर में इसको ट्रैचुरेट करेंगे या प्रिपरेशंस प्रोसीड करेंगे तो इट विल वोलेटाइलाइज, कंटेंट लॉस होगा। दैट्स व्हाई बॉटल मेथड इज प्रिपेयर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ emulsions हैविंग वोलेटाइल कंटेंट। जो वोलेटाइल सब्सटेंसेज है उनकी विस्कोसिटी भी कम होती है, और टाइम के साथ अगर ओपन है, स्पेशली थोड़ा सा वार्म कंडीशन है, इट विल गेट वोलेटिलाइज्ड रिजल्टिंग इनटू द लॉस ऑफ कंटेंट। सो इट्स द फ्लो चार्ट ऑफ द मेथड। क्या करना है इसमें हमको? इट्स ड्राई गम मेथड। एज यू कैन सी इट्स ड्राई गम मेथड, लेकिन क्लोज्ड बॉटल में यूज करना है, इसीलिए इस मेथड का नाम है बॉटल मेथड। एक क्लोज्ड बॉटल लेते हैं, गम दैट इज एमल्सिफाइंग एजेंट प्लस ऑयल, इन दोनों को हमने ड्राई बॉटल में कोई भी ऑयल कोई भी वाटर कंटेंट नहीं है, ड्राई बॉटल में लिया, शेक विगरसली। हम इसको शेकर के थ्रू भी, और अगर लेबोरेटरी स्केल पर है तो विद द हैंड्स, अपने हाथों से हमने शेक कर लिया। प्रॉपर शेक करने पर म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस फॉर्म होगा। देन इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर, जितना ऑयल लिया है उतना ही वाटर ऐड करना है, और अगेन सेम प्रोपोर्शंस में स्लोली ऐड करते चले जाना है विद कंटिन्यूअस शेकिंग। थोड़ा सा वाटर इक्वल प्रोपोर्शन में ऐड किया हमने, शेक किया, शेक करना है, विगरसली शेक करना है ताकि आपका इमल्शन प्रॉपर बने, उसमें कोई फेज सेपरेशन अचीव ना हो। एक बार शेकिंग हो गई, फिर वापस हम सेम प्रोपोर्शन को ऐड करेंगे और विगरस शेकिंग करेंगे। इस तरह से कंटिन्यू करते हैं जब तक कि हमारा प्राइमरी इमल्शन ना बन जाए। एक प्राइमरी इमल्शन बनने के बाद रेस्ट आप वाटर से वॉल्यूम मेकअप कर लेते हो। तो बॉटल मेथड कब यूज करते हैं? जब हमारा सब्सटेंस वोलेटाइल हो। नेक्स्ट इज, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, रेशियो क्या रखना है ऑयल का, गम दैट इज इमल्सिफाइंग एजेंट का, और वाटर का रेशियो क्या रखना है हमें, ये इंपॉर्टेंट है। गम और वाटर, गम और वाटर हमेशा 1:2 के रेशियो में यूज होगा। जस्ट द ट्रिक टू रिमेंबर, गम हमेशा 1 और वाटर 2। 1:2 का जो रेशियो है वो गम और वाटर का है, गम हाफ क्वांटिटी, वाटर उसकी डबल क्वांटिटी। ऑयल ही है जो वेरी करता है। ऑयल कैसे वेरी करता है? अगर फिक्स्ड ऑयल है, फिक्स्ड ऑयल मतलब वोलेटिलाइज नहीं हो रहा है, हाई टेम्परेचर पर कहीं जाकर के ये बॉयल होगा, तो फिक्स्ड ऑयल का जो प्रोपोर्शन है वो 4, और ऑयल गम वाटर फॉर फिक्स्ड ऑयल ये रेशियो जाएगा 4:1:2। ठीक है। वोलेटाइल ऑयल लेस विस्कस है, वोलेटिलाइज भी होता है, बहुत ही फ्लोइंग है। यहाँ पर हम जो रेशियो लेते हैं इट इज 2:1:2। एंड इफ यू आर यूजिंग oleoresins the ratio is 1:1:2। इस केस में जो रेशियो है वो है 1:1:2। आई एम अगेन टेलिंग यू, गम और वाटर का रेशियो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। गम और वाटर का रेशियो आप कांस्टेंट रखते हो, कोई चेंज नहीं है, और ये रेशियो है 1:2 का। फिक्स्ड ऑयल के लिए ज्यादा प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल यूज होता है, ओलियोरेजिन्स के लिए सबसे कम होता है। फिक्स्ड ऑयल के लिए 4:1:2 है, वोलेटाइल के लिए 2:1:2 है, और ओलियोरेजिन्स के लिए 1:1:2 का रेशियो है। Thank you very much for your patience. All the best for all your exams. If you have any query, you can contact on the number and the email ID given below. Thank you.